Okay, hi everybody. This video that we are going to start today, here we are dealing with Index 23. Okay, and in Index 23 also one specific point that I'm going to deal here is this paragraph 6E of Index 23. Okay, which says about what are the exchange differences that you could capitalize. So, are there some exchange differences that you can capitalize? So, this is what this index is talking about. Actually this paragraph 60 is talking about, so we'll be dealing this in detail today. Okay, we're going to understand this through an example so that though it is very easy, okay, but just a understanding point is missing, which generally when we go through and just read it out we are not able to get it and clarify the same. So let's move ahead with this without wasting any time. So 60 paragraph, what it says first of all, okay, so borrowing cost may include, okay, borrowing cost may include the interest expense calculated as per EIR method, that is absolutely normal. Then it can include finance charges in respect of finance fees, that is again normal. The third portion it talks about is the exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost. Obviously, जितना आप interest cost में adjustment करोगे उतना आपको borrowing cost मिलेगा वो, and it can be capitalized to that extent. So how and what it is saying, first we're going to just read it, okay, and then I'm going to explain you through an example, then again we're going to read it, so you'll understand this better. Okay, so you can understand this better, so let's just have a reading first. Okay, let's begin. So with regard to exchange difference required to be treated as borrowing costs in accordance with paragraph 60, the manner of arriving at the adjustment is stated therein. So it's like the adjustment should be of an amount that is equivalent to the extent to which the exchange loss does not exceed the difference between the cost of borrowing in functional currency when compared to the cost of borrowing in foreign currency. Okay, so एक चीज पहले एक्सप्लेन कर देता है. यहाँ पे बात हो रही है FCBs की, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स, ठीक है, एंड उनके जो एक्सचेंज डिफरेंस आते हैं, एक्सचेंज जो उनका आता है अपना डिफरेंस, हम उसके कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट हम उसकी कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं. नाउ हाउ डज दिस इवन अफेक्ट अस? एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइजेशन कैसे आ गया? बहुत सिंपल है, छोटा सा रिलेट करना पड़ेगा. लोन होता है, सो व्हाट इट इज अ लोन? व्हाट इज अ लोन? लोन इज अ मॉनेटरी आइटम. ओके, सो इफ यू हैव टेकन इट इन फॉरेन करेंसी यू हैव टू रीइंस्टेट इट. ठीक है, तो उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रीइंस्टेट करना पड़ेगा. रीइंस्टेट करके हम लोग उसे क्लोजिंग रेट पे ले आएंगे, राइट, एब्सोल्युटली नॉर्मल एज पर इंडेक्स 21. ठीक है, ये भी मैं एक लिंक कर करके काम करते हैं क्योंकि क्या होता है लिंक करने से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. तो इंडेक्स 21 लोन आपको उसे रीइंस्टेट करना पड़ेगा. अब लोन को रीइंस्टेट करोगे सो देयर डेफिनेटली बी सम एफएक्स गेन और एन एफएक्स लॉस, राइट. सो एफएक्स गेन और एफएक्स लॉस जिसको आप नॉर्मली कहाँ चार्ज करते हो? पीएनएल में चार्ज कर देते हो, बट ये तो मेरी पीएनएल वॉलेटिलिटी लेके आ जाएगा. अगर मैं पीएनएल में चार्ज करूंगी देन इट विल बी अ वॉलेटिलिटी. तो ठीक है, वॉलेटिलिटी तो हो सकती है, लेकिन अगर इफ आई वुड हैव टेकन अ लोन इन INR, दैट इज इंडियन करेंसी, दैट इज माय functional currency, functional currency, if you must have read Index 21 before, तो ये terms बहुत normal होंगी. Else if you have read it in even in like IPCC also, these terms will be normal for you. So functional currency, so if I would have taken a loan in functional currency, then what would I have done? Remember something in borrowing cost, normal जो होता था, so it was what? Weighted average rate हम लोग निकालते हैं. वेटेड एवरेज रेट निकाल के हम लोग क्या निकाल देते हैं? एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं. वेटेड एवरेज करके हम एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो वो कैपिटलाइजेशन रेट से हमारा काम हो जाता है. ओके, सो कैपिटलाइजेशन रेट आप निकालते हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं कब? जब हमारे पास मेनी लोन्स होते हैं, मेनी लोन्स. मैंने यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वहां पे मैं एक स्पेसिफिक लोन की बात कर रही हूँ, ठीक है. स्पेसिफिक लोन मतलब कोई भी एक बिल्डिंग बनानी थी, केवल उसी के लिए मैंने क्या लिया? लोन ले लिया. सो दैट इज अ स्पेसिफिक लोन. तो केवल उस लोन के लिए, सो दैट मीन्स दैट अमाउंट विल बी फुल्ली कैपिटलाइज्ड. ऑल द इंटरेस्ट, ऑल द इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ, जब तक कि वो किस पोजीशन में नहीं आ जाता? इंटेंडेड यूज में नहीं आ जाता. जब तक कि वो इंटेंडेड यूज में नहीं आ जाता, मतलब इंटेंडेड यूज जितना वो नहीं बन जाता, तब तक का इंटरेस्ट वुड बी व्हाट? कैपिटलाइज. सिंपली आप उसे कैपिटलाइज कर देते हैं. तो
फिर भाई साहब इतना क्या डिफरेंस हो रहा है कि एफसीबीज में आप एक्सचेंज गेन लॉस की बात करने लग गए और पता नहीं क्या क्या बात करने लग गए। तो होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है एज पर फॉरेन करेंसी एंड एज पर आईएनआर, मतलब क्योंकि वो आपकी फंक्शनल करेंसी, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी और आईएनआर करेंसी में क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी ना। अगर मैं यूएसडी का 10,000 यूएसडी का लोन ले रही हूँ और वहीं पे मैं बोल रही हूँ कि मैं 70,000 सॉरी 7 लाख आईएनआर का मैं लोन ले रही हूँ, दैट वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होती है और उस पे अलग होती है, ठीक है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती रहती है। और अगर आपने एसएफएम में पढ़ा होगा तो देयर इज एन आईपीआर sort of a term, that is what interest, sorry IRP, interest rate parity, okay, interest rate parity होती है जिससे वो रीच करते हैं। तो अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट थोड़ा सा अगर बता दूं तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी सेम नहीं होती। तो अगर मैं यूएसडी पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसको आईएनआर रेट से कन्वर्ट करके उस दिन और निकालती हूँ इंटरेस्ट, और जो मेरा आईएनआर में ऑलरेडी लिया हुआ है और उस दिन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकालती हूँ, उसमें डिफरेंस नहीं होता है। उस डिफरेंस को कम कर देता है ड्यू टू दिस आईआरपी, क्योंकि अगर वो डिफरेंस रहा तो क्या कर सकते हो आप, आर्बिट्राज, आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी रहती है ना, थोड़ा बहुत एसएफएम अगर याद आ रहा हो तो, अगर पढ़ा हो पहले, नहीं तो अभी इसे इग्नोर कर दोगे, फिर आप थोड़ा आगे कर लेना, मूव यू कैन शिफ्ट द वीडियो फॉरवर्ड। बट आज अगर आपने एसएफएम पढ़ा हुआ है और या फिर अगर आप एसएफएम पढ़ लोगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, ओके। सो इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ऑल दिस इज कमिंग इनटू पिक्चर, ऑल दिस इज कमिंग इनटू पिक्चर, व्हाट इज कमिंग इनटू पिक्चर, दीज एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो यहाँ पे इसने बोला कि ओनली टू द एक्सटेंट, okay, my exchange loss that can be capitalized or that can form part of borrowing cost shall not exceed the difference between the cost of borrowing in functional currency when compared to the cost of borrowing in foreign currency. अभी explain करते हैं इसको. So let's move ahead to an Excel. Okay. So Excel में हम लोग समझ रहे हैं एक चीज, तो मैं बताती हूँ आपको क्या चीज है. सपोजिंगली मैंने 1/4/2020 को एक लोन लिया, ठीक है, 1/4/2020 को एक लोन लिया। एक सेकेंड, हम पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि दिखता ना रहे आपको। ओके, सो हमने क्या किया, 1/4/2020 को लोन लिया, डॉलर्स में लोन लिया, 1000 यूएसडी का लोन लिया, हम लोग उसे बोरो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो 1/4/2020 को लोन लिया, ओके, एंड बोरिंग्स 1000 यूएसडी की मानी, उस दिन की एक्सचेंज रेट इज 40, दो बहुत कम है, और 40,000 रुपीज हो जाते हैं वो इंडियन करेंसी के हिसाब से। इंडियन रेट इज 12% एंड फॉरेन रेट इज 4%, तो ये आपकी बोरिंग कॉस्ट हो जाएगी। एंड देन सपोजिंगली 40 से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाती है टू 50, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक्सचेंज लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरी बोरिंग 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है, मुझे 10,000 रुपए आज की तारीख में ज्यादा पे करने पड़ेंगे। एंड फिर मैंने निकाला इंटरेस्ट कॉस्ट इंडिया के हिसाब से कितनी होगी, इट वुड बी 4800, 40,000 पे मैंने लोन लिया था फर्स्ट डे को। अगर मैं इंडिया में लोन ले लेती तो 40,000 रुपीज का होता वो लोन, और उस दिन की एसबीआई रेफरेंस रेट या कुछ भी तरीके से, तो एसबीआई जनरली प्रेफर किया जाता है कैलकुलेशंस में, इफ यू गोइंग टू बी इन कॉर्पोरेट नो, सो आप 12% की रेट ले लोगे, तो 12% की उस दिन की रेट थी, नॉट द करंट रेट, ओके, सो 12% की उस दिन की रेट थी, एंड 12% की उस दिन की रेट थी, तो सो 12% की उस दिन की रेट थी, तो उस हिसाब से 4800 का मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट आ जाता है। अगर ये चीज मैं फॉरेन करेंसी में निकालूं तो कितनी होगी, 1000 इंटू 4%, ओके, इट टर्न्स आउट टू 40, 40 तो कैपिटलाइज नहीं होगा, 40 को आप कन्वर्ट कर दो 50 की रेट से, 50 एवरेज और क्लोजिंग हम लोग सेम मान रहे हैं अभी, ठीक है, दो देर से डिफरेंस, एक बार हम मान के चल रहे हैं एवरेज और क्लोजिंग मान लो अगर सेम है, ठीक है, तो 40 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। तो अब हम कैपिटलाइज कितना करेंगे, पहले तो इंडियन करेंसी में नहीं लिया मैंने, मैंने फॉरेन करेंसी में लिया है, तो एज एन इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग 2000 रुपीज कैपिटलाइज करेंगे, नॉर्मल है, इंटरेस्ट कॉस्ट मान के 2000 रुपीज कैपिटलाइज करना अलाउड है। लेकिन भाई साहब इस 10,000 रुपए का क्या होगा, जो मुझे लॉस हो गया, जो कि मेरा पीएनएल में जा रहा है। मान लो अगर मैं नहीं लेता लोन फॉरेन करेंसी में, मैं इंडियन करेंसी में लोन लेता, तो मुझे कितना कैपिटलाइज करने को मिलता, 4800। आर यू गेटिंग दिस, ओके, अगर मैं इंडियन करेंसी में लोन लेता तो मुझे कितना कैपिटलाइज करने को मिलता, 4800। But just because I've taken a loan in foreign currency and if we are converting it, it is just turning out to be 2000. Is it fair enough? No. तो क्या मुझे कुछ और कैपिटलाइज करने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा सर, लेकिन किस एक्सटेंट तक मिलेगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 4800,
जस्ट मेक अ नोट, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 4800 आप क्या कर पाओगे, कैपिटलाइज कर पाओगे। सो जस्ट इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम 2000 रुपीज तो इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम पे कैपिटलाइज करेंगे, और बचे हुए 2800 जो कि 4800 माइनस 2000 का डिफरेंस होता है, वो हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे इन द नेम ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस विच आर एलिजिबल एज पर पैराग्राफ 6E ऑफ योर इंडेक्स 23। एज पर पैराग्राफ 6E हम लोग क्या कर पाएंगे, कैपिटलाइज कर पाएंगे, ठीक है। एंड नॉन एलिजिबल पोर्शन वुड बी 7200 विच विल बी चार्ज टू वेयर, पीएनएल, ये पीएनएल में डंप हो जाएगा। वरना पहले पीएनएल में कैसे डंप होता था, इंडेक्स 23 नहीं होता तो पिक्चर में, पीएनएल में हम पूरा 10,000 रुपए डंप कर देते और केवल 2,000 रुपए कैपिटलाइज करने को मिलता। बट नाउ यू विल गेट टू कैपिटलाइज एक्चुअली 4800। व्हाट इफ मेरा 10,000 से कम होता, मान लो ये होता समवेयर अराउंड, मैनुअली मैं इसे एडिट कर देती हूँ, समवेयर अराउंड इट वुड हैव बीन 2000 itself, ओके, केवल 2000 होता तो मुझे कितना कैपिटलाइज करने को मिलता, ऑब्वियसली जितना है उतना ही तो करोगे, तो 4000 हो जाता है। ये टोटल कैपिटलाइजेशन वुड हैव बीन, सो इट वुड बी लाइक 2000 और आप कैपिटलाइज कर पाते, और नेट डिफरेंस जो है पीएनएल में कुछ भी नहीं जाता, इट वुड हैव बीन 0, ठीक है, क्योंकि आपने पूरे 4000 रुपए जो था आपका वो पूरा कैपिटलाइज कर दिया आपने। 2000 एज इंटरेस्ट, 2000 एज लॉस, एक्सचेंज लॉस, और इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक डेट आती है 31 मार्च 21 को, ठीक है। 31 मार्च 21 को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया 31 मार्च 21 को क्या होता है। एक्सचेंज रेट 50 हो जाती है, बोरिंग कॉस्ट 2000 है, एक्सचेंज लॉस 10,000 का है विच इज अनरियलाइज्ड करेंटली, एंड कैपिटलाइज आप 2800 और कर सकते हो, सो टोटल ऑफ 4800 हो जाएगा, ओके। 4800 की क्योंकि टोटल आप इंडिया में लेते तो आप 4800 ही कैपिटलाइज कर पाते, उससे ज्यादा कैपिटलाइज कर ही नहीं पाते, तो आप एनी वेज भी कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोजिंगली मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, वही जो मैं छोटा एग्जांपल बता रही थी आपको, तो 41 ही होती, ठीक है, मतलब मेरी 40 से 41 बढ़ती तो मेरा 1640 का लॉस होता, 1640 हो जाता बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, और 1000 का मेरा लॉस होता लोन पे, तो मैं कितना कैपिटलाइज कर पाती, मैंने इधर फॉर्मूला मिनिमम का लगा दिया, तो मैं 1000 रुपीज और कैपिटलाइज कर पाती। सो इन टोटालिटी आई वुड हैव कैपिटलाइज व्हाट 2640, 4800 नहीं होगा क्योंकि अब वो लॉस ही इतना कम है तो उससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो एक्चुअली आपका फॉर्मूला कितना क्या बन जाता है, एक्चुअल और हैड बीन इन INR विच एवर इज लोअर, उतना आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसकी एक छोटी सी टेबल बनाई है। तो फर्स्ट टाइम गेन पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगी, गेन पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। Yes, so I've made this small table. Again, I'm going to explain it, though it is not that difficult. So first time, if you are getting a loss, first time means the initial recognition. So initial recognition, so you're getting a loss. Consider to the extent of borrowing cost in Indian borrowings. Okay, minimum of dollar interest minus rupees interest, मतलब interest in dollars and interest in rupees. So minimum of that आप उसका डाल दोगे, डॉलर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इन रुपीज, और एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर उसका आप कैपिटलाइज कर पाओगे, राइट। और सब्सिक्वेंटली अगर आपको लॉस या गेन होता है तो आपकी सेम स्टोरी रहेगी लॉस के केस में, ठीक है। तो मिनिमम आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, मिनिमम ऑफ डॉलर इंटरेस्ट माइनस रुपीज इंटरेस्ट, वो जो आ रहा है, या फिर जो आपका एक्चुअल एक्सचेंज लॉस है विच एवर इज लोअर, यहाँ पे अपन ने वही किया, ठीक है। So minimum of 4800 minus 2000. What was my dollar interest here? 2000. And what was my interest in INR? 4800. तो 2000 minus 4800 is 2800 का आपका लॉस है, और एक्सचेंज लॉस 10,000 का है। तो विच एवर इज लोअर दैट इज 2800 तक आप और क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो फर्दर, राइट। सो होप इट इज क्लियर। एंड फिर मैंने यहाँ पे एक गेन का भी एक एग्जाम्पल बनाया, लेट्स गो थ्रू दैट। गेन भी है और मैंने एक सब्सिक्वेंटली अगर मैंने कुछ पोर्शन रीपे कर दिया उसका भी एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, सो अब मैं गेन वाला पोर्शन पहले आपको समझा देती हूँ। गेन का क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम मुझे गेन होता है तो क्या मैं कैपिटलाइज कर सकती हूँ, नहीं। फर्स्ट टाइम अगर आपको एक्सचेंज गेन होता है तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंटली अगर मुझे एक्सचेंज गेन होता है, सब्सिक्वेंटली इन द सेंस पहली बार आपके लोन 5 ईयर्स का है, राइट। तो फर्स्ट ईयर मुझे लॉस हुआ, सेकंड ईयर में गेन हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ, सेकंड ईयर में गेन हुआ, तो हमारा फर्स्ट ईयर सपोजिंगली ये था जिसमें हमने कितना एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करा, 2800 का।
ठीक है, हमने 2800 का एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करा। सपोजिंगली अभी रेट थी 50, तो 50 से इट टर्न्स आउट टू बी 45। ठीक है, तो मुझे 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 रुपए का गेन हो जाएगा। तो क्या मैं 5000 के गेन को सेट ऑफ कर सकती हूँ, मतलब कैपिटलाइज कर सकती हूँ? हाँ, आप करोगे। कैपिटलाइज करने से क्या होगा, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप यू गेटिंग इट। तो कैपिटलाइज कर सकते हो मतलब किस एक्सटेंट तक 5000 के गेन को कैपिटलाइज कर सकते हो? टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस रिकॉर्डेड अर्लियर। So that means 5000 or 2800 whichever is lower. So that is obviously 2800. तो 2800 तक आप क्या कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। मतलब इन एनी केस इंडेक्स 23 के चक्कर में आपके एसेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी, मतलब नेगेटिव तो नहीं जाएगी, मतलब कम नहीं हो जाएगी जब तक कि आपने कोई लॉस नहीं डाला हो। तो धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड अगर आपने कोई एक्सचेंज लॉस डाला है, तो अगर आपको सडनली कोई गेन हो जाता है उस लोन पे, तो आप ऑफसेट कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस रिकॉर्डेड अर्लियर। ठीक है, तो मेरे केस में जैसे मैंने बोला 5000 रुपए का अगर मुझे गेन हो जाता है फर्दर, तो 5000 और 2800 विच एवर इज लोअर दैट इज ऑब्वियसली 2800 तक मैं कैपिटलाइज कर सकती हूँ। तो मेरे नेट कैपिटलाइजेशन वुड बी 2000 ओनली ऑफ दैट इंडियन करेंसी। ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली ऐसे कुछ एग्जांपल्स और आपको एसएम में मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ पोर्शन था जो कि क्या हो गया, मैंने रीपे कर दिया। सपोजिंगली मैंने कुछ लोन रीपे कर दिया, तो अब मैं किस एक्सटेंट तक अपने लोन को कैपिटलाइज कर पाऊंगी टू द ऑफ दैट एक्सचेंज गेन एंड लॉस। सो हाउ आई एम गोइंग टू टेक दैट आउट, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल एज इन, बट इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं जो हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, so just get back to this. So it is the adjustment, हम कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो पढ़ रहे थे। So the adjustment should be of an amount which is equivalent to the extent to which the exchange loss does not exceed the difference between the cost of borrowing in functional currency when compared to the cost of borrowing in foreign currency। तो यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनोलॉजीज भी लिख सकते हैं। So cost of borrowing in foreign currency which is what, your डॉलर का इंटरेस्ट, right, if I'm not wrong, your डॉलर का इंटरेस्ट and your dollar का interest and your cost of borrowing in functional currency, मतलब यहाँ पे आ जाएगा your INR का इंटरेस्ट। ठीक है, तो डॉलर का इंटरेस्ट INR का इंटरेस्ट के डिफरेंस को एक्सीड नहीं करना चाहिए। डिफरेंस का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, राइट। सो डिफरेंस मीन्स डॉलर इंटरेस्ट माइनस INR इंटरेस्ट, और डॉलर इंटरेस्ट माइनस INR इंटरेस्ट, और एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर। तो यही यहाँ पर भी गिवन है। और एक्सचेंज लॉस जो है विच एवर इज लोअर, एक्सचेंज लॉस डज नॉट एक्सीड मतलब विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो होप ये समझ आ जाएगी लाइन नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ते हो। दैट वाज माय मेन इंटेंशन। एंड वेयर देयर इज एन अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस व्हिच इज ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट एंड सब्सिक्वेंटली देयर इज अ रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन। ठीक है, तो अगर गेन हो जाता है ऑफ द सेम बोरिंग, ऑब्वियसली the gain to the extent of loss previously recognized as an adjustment shall also be considered as an adjustment. So in our case it was like मेरे 5000 रुपए का गेन हो रहा था और 2800 whichever is lower. So 5000 और 2800 whichever is lower में अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं अगेन। ठीक है, सो होपफुली दिस इज क्लियर। सब्सिक्वेंट वाला हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो सब्सिक्वेंटली मान लो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है 44, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट हो जाती है 44। ठीक है, तो मेरा मैंने कुछ लोन रीपे करा। ठीक है, मैंने रीपे करा $6000 का लोन रीपे कर दिया। सो इट वाज ऑलमोस्ट व्हाट 48%, नॉट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 48%, 40% आपका लोन रीपे हो चुका है। तो अब मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो 40% पोर्शन पे आ जाएगा। मैंने वही करा, 1000 का 4% और इंटू 44 की रेट इंटू 40% का इंटरेस्ट आएगा। 1000 मतलब यू कैन कैलकुलेट अराउंड 400, राइट। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ बहुत तीर का मान लगेगा। सो इंटू 4% एंड इंटू योर 44 की रेट, तो दैट इज योर 704 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये तो मैं कैपिटलाइज करूंगी ऑब्वियसली। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सचेंज मुझे क्या होता है, 50 से हम लोग कहाँ पे आ गए, 44 पे आ गए। ठीक है, तो देर इज एन एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन ऑन व्हाट, 400 रुपए पे एक्सचेंज गेन हो रहा है, तो दैट इज व्हाट 2400। यू कैन डेफिनेटली टेक दिस आउट। तो 50 माइनस 44 आपके आ जाएंगे 6 रुपए, 6 रुपए ऑन योर $400 लोन दैट इज पेंडिंग। सो दैट टर्न अमाउंट्स टू 2400। ओके, सो 2400 का मुझे क्या हो रहा है, गेन। अब ये गेन मैं किस एक्सटेंट तक कैपिटलाइज करूंगी, so this gain could be capitalized
ठीक है, ये मैंने $400 पे जो गेन निकाला, ये गेन कैसे कैपिटलाइज होएगा? जस्ट अ मिनट। सो हमने क्या निकाला था, 40% के ऊपर हमें कितने का गेन होता है, तो दैट इज 2400। ठीक है, 40% मतलब $400 पे। अब हम किस एक्सटेंट तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं? अब मैंने बोला था कि पहले अगर मेरे पास पूरा लोन होता तो हम पूरे लोन के ऊपर कैसे निकालते, 1000 रुपए के ऊपर हमें 6 रुपए का गेन हुआ है, तो 6000 रुपीज का हो रहा होता, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते, मिनिमम। ओके, सो मिनिमम आप कर लेते ऑफ 6000 और 2800 का लॉस, तो आपका 2800 का आ जाता है। लेकिन अभी मेरे पास फुल लोन नहीं है, अभी मेरा लोन क्या हो गया है, 40%। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको आप 0.4 कर दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप पूरे को क्या कर सकते हो, 0.4 कर सकते हो। तो आप पूरे का निकाल लो कि अगर पूरे पे कितना होता, और उसका आप 0.4 कर दो, उतना ही मैं क्या कर सकती हूँ, गेन रिकॉर्ड कर सकती हूँ। या फिर ये सिंपलेस्ट तरीका है, या फिर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 2400 का मुझे हो रहा है और 2800 का मैंने लॉस रिकॉर्ड करा था, लेकिन 2800 का भी 0.4 इज 1120, तो उस एक्सटेंट तक ही मैं गेन रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, 2400 और 1120 विच एवर इज लोअर, दैट इज 1120 का गेन आप रिकॉर्ड कर पाओगे। बचा हुआ जो आपका बचा, लाइक 2400 का गेन था, राइट, माइनस आपने 1120 का ही रिकॉर्ड करा, तो 1280 आपके पीएनएल में गेन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, I hope this is clear enough. If you have any queries, you can jot down in the comment section below, and I'm going to deal with it for sure. और मुझे नहीं भी आता होगा तो भी मैं पढ़ के आपको डेफिनेटली बता दूंगी। And happy studying till then. Thank you so much.